ये एक्चुअली दो चीजें हुई थी। पहली बात, अगर मैं आपको थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस दूं, अगर मैं आपको ये बता दूं कि क्या ये एक्चुअल में टफ था, द आंसर कैन नॉट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि यस इट वाज टफ। आई मीन यू गॉट टू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में ये टफ नहीं था। एक्चुअली इसमें हुआ क्या था, इसमें लगा था शॉक। ठीक है, ये चीज ऑलवेज याद रखना, ये मैं ऑलवेज बच्चों को बताता हूँ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। नाउ when you are appearing for an exam which is nothing but sort of CAT exam, right? And when you are appearing for CAT exam, मैंने पहले भी कहा था, CAT is always going to surprise you. That's the USP of CAT. So CAT will always surprise you, no doubt about that. अब हुआ ये था कि 2017 में people felt that DILR will be easy, doable, calculation, all that stuff. But what happened on the D-Day, people were shocked because they could not see that sort of pattern. Number one, pattern. Okay, pattern was a little different, right? The level of difficulty of question was way higher. Okay, there were a lot of questions. They were predominantly based on a lot of variety, and actually people were not ready for it. For example, we were not ready for something like some shit like coronavirus, and all of a sudden we had to face it, and that's when there was a chaos. At the same time, similar, I'll give an analogy, by the way. If you look at 2018 का quantitative ability, 2018 का अगर आप quants देखोगे, even it was a shocker. People were saying that कि हाँ थोड़ा tough आएगा, but वो कुछ ज्यादा ही tough था. But when you literally understand your paper, when you literally sit down and understand your paper, today if you go back and check 2018 का quants and check 2017 का DILR, you'll feel that what, it was sort of easy. I think it was more of doable. ऐसा कुछ तोफ नहीं था. So this is first thing that you need to understand. This is what exactly happened in 2017. When you get that shocker, you are like a little bit submissive. And that's when you feel that the section is very much tough. Actually, section was doable. It was definitely doable. Let's do the analysis now. We've got 17, 18, 19. If you look at the scores, right, for 80%, what is required? 21. Yeah, this is nothing but 7 questions that was required for 2017, because definitely इसका जो level of difficulty था वो थोड़ा सा ज्यादा high था. राइट अगर हम दो चीजों को देखते हैं, एक होता है कैप, एंड एक होता है आपका फ्लोर. राइट, कैप इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिफिकल्टी एंड द फ्लोर इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ डिफिकल्टी दैट यू कैन गो फॉर DILR. एंड ट्रस्ट मी, mark these words, mark today's date. You can tell me later on, once you are done with your CAT on 29th November, one thing that everybody who's watching this video, you guys have to keep in mind that your data interpretation and logical reasoning is never and never about IQ. I can bet on this. It's never about IQ. Definitely, there is an IQ requirement, but not 100%. Trust me, it is more of EQ. जो 2019 के बच्चे हैं जिन्होंने 2019 में CAT दिया है, they can very well understand what I'm trying to tell you. All those guys who are attempting CAT for the first very time, you need to understand this. It's more of EQ. See, why do I say that? Your emotional quotient got to be really, really good. People look at DILR, we know it is going to be a bizarre, we know it is going to be a disaster. 17 we had seen that, 18 we had seen that, right? 2019, 17 और 18 दोनों 2 साल का एक्सपीरियंस था बच्चों को, फिर भी 2019 में जाके people did same mistakes back again, because we get scared, we get submissive, we feel that मुझसे नहीं होगा. But what you need to understand is that you have to go away from graduation wala methodology of your study. That is something you should not be sort of looking at. Now there are 32 questions on any given day. Even for 98.99 percentile, you don't really have to do 34 and 34. But the fact I just talked about 99.99, would love to make a mention of 61. So somebody who's got 99.99, that chap has actually scored 61 marks. Right? Now again, 99.99 पे बहुत सारे बच्चे होंगे, right? तो अगर हम 99.99 के बारे में बात करेंगे तो कितना क्वेश्चन बनेगा? 20 क्वेश्चन. कितना बनेगा? 20 क्वेश्चन. आपने मार्केट में क्या सुना है? 16 क्वेश्चन, which is incorrect. If I tell you 4 questions more, बैंड बज जाती है. मतलब लिटरली नहीं होता कि सर 4 क्वेश्चन और करने 99.99 के लिए. You getting my point, right? So 99.99
is going to be around about 2021. Okay, at the same time, if we shift our focus little bit, if you look at 52 मतलब कितना होगा रे? 18 question with 100% accuracy. Yeah? With 100% accuracy. This is being the toughest one. This is being the easiest one. That's what you need to understand. And that's the reason I say your EQ would matter a lot. अब सर आप EQ के बारे में क्यों बात करते हो? सिंपल सी बात है dude. एक बात याद रख, 32 में से 99.99 के लिए तुझे करने हैं 20 क्वेश्चन. मतलब तेरे को 12 क्वेश्चन नहीं करने हैं. You have to go away. You have to go away from those 12 questions. These are all potholes. एक बार अगर आपने ऐसा क्वेश्चन ले लिया जहां पे आप फंस गए, आपका DILR स्क्रूड होने वाला है, राइट? तो ये चीजें आपको समझना बहुत जरूरी होता है कि अच्छा मुझे 12 क्वेश्चन वो छोड़ने हैं. अगर मैं बात करूंगा थोड़ा कम परसेंटाइल के बारे में, उसका एनालिसिस में करूंगा, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिक्वायर्ड, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट 99. 99 is a very sweet spot. 99 is a beautiful spot. A lot of people can achieve that. Okay, 45. कितना क्वेश्चन? 15 with 100% accuracy. Yeah? With 100% accuracy. Please do not consider 15 क्वेश्चन करूंगा तो मेरा 99 बनेगा. बिल्कुल भी नहीं. 45 मार्क्स का मतलब है सर 15 क्वेश्चंस करेक्ट. बट सर अगर मान लो मैंने 20 क्वेश्चन किया तो, और 20 में से अगर मेरा 5 क्वेश्चन गलत हुआ तो बेटा तेरा 15 क्वेश्चन बराबर आया, तेरे को 15 का मार्क्स मिलेगा. 15 इंटू 3 45 तेरे को मार्क्स मिलेगा. ऊपर का जो 5 क्वेश्चन तेरा गलत गया -5, मतलब आप आगे पहुंच गए 40 पे, मतलब आप 99 की रेस से बाहर हो. दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. Right now, going ahead, so 15 question I'm looking at when the paper is tough. I'm looking at round about, let's say 16 question in the case of 2018, just slightly easy tha. Okay, and you know what, I'll tell you something. अगर कोई 2018 का बच्चा होगा ना यहाँ पे, थोड़ा मुझे हेल्प करना मतलब थोड़ा मेरे साथ सिंक करना. I'll tell you something. You know what, 2018 का DILR was actually doable. 2018 का DILR was actually doable. The problem was 2017 का जो फोबिया था हमारा कि भाई DILR बहुत तगड़ा आने वाला है, उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया. बट अगर आप देखोगे 2017 was very tough, 2018 was medium. Now 2018 was a year wherein people were sort of started adapting to DILR. उनको लगा कि नहीं भाई होता है, कर सकते हैं, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ कोडिंग नहीं है, नासा के लिए कुछ कोड वोड नहीं लिखना है, कोई भी कर सकता है, आराम से कर सकता है. फाइन. अब क्या होता है यहाँ पे, अब 2019 की बात अगर करेंगे तो फॉर द फैक्ट पीपल वर काइंड ऑफ इजी विद DILR. आपका स्कोर शूटअप हो गया बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चंस डुएबल ज्यादा थे. तो अगर हम 99 के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आगे 15 क्वेश्चन, यहाँ पे आगे 16 क्वेश्चन, यहाँ पे आगे आपके 18 क्वेश्चन, मान लो 17 क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, 17 क्वेश्चन पकड़ लेते हैं. ये स्केल्ड स्कोर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, रॉ स्कोर इससे कम होगा. ओके, दैट्स योर 99. बट अगर हम 80 परसेंटाइल से चले, अगर हम 80 परसेंटाइल से चले तो 8 क्वेश्चंस अगेन 7 क्वेश्चन. मतलब आपका पेपर जब बहुत ही ज्यादा टफ होता है तो 6 to 7 क्वेश्चन. अगर आपका पेपर इजी होता है तो 8 to 9 क्वेश्चन. अब मैंने कितनी बार बोला है आपको, आपके DILR में आपको 2 सेट्स करने हैं, मतलब आपको 8 क्वेश्चन करने हैं 32 पे. दैट्स 1/4, दैट्स ओनली 25% गॉडडैम पेपर. Anybody who does 25% goddamn paper, you are close, you are in the 80 percentile का ब्रैकेट. चल यार इतना भी आप कट टू कट मत करो, 10 क्वेश्चन करो, 10 क्वेश्चन सही करो, या 10 में से 9 क्वेश्चन सही करो, ताकि आपका 27 बने. 27 - 1, एटलीस्ट आप 26 पे आ जाओ. आप 80.1020152939 व्हाटएवर इट इज, आप वहां पे बनोगे. आपकी नैया पार है, आपकी लाइफ सेट है, आप लोग गेम में हो, कंपटीशन में हो. इतना आप कर सकते हो 4 महीने में. फालतू में आप टेंशन लेके मत बैठो. DILR इज नॉट अ मॉन्स्टर. मैं ऑलवेज कहता हूं कैट एज अ गेम. दिस एग्जाम इज नॉट अबाउट योर टैलेंट, दिस एग्जाम इज नॉट अबाउट योर IQ, दिस एग्जाम इज मोर ऑफ योर EQ. अगर आपको पता है तो आप कर लो. मैं आपको बताता हूं कितने सारे टैलेंटेड बच्चे हैं, जब भी वो मॉक्स देते हैं, मॉक का स्कोर देके उनकी फट जाती है, बिकॉज दे कांट इमेजिन कि शिट ये मेरा मॉक का स्कोर है. बिकॉज यू सक एट EQ, यू लिटरली सक एट EQ. तेरे क्लासेस वाले तुझे बता रहे तू इतने क्वेश्चन कर, तू उतने क्वेश्चन कर, बट हम अपना दिमाग नहीं लगा रहे कि मैं कौन से टाइप के क्वेश्चन करूं,
मैं कौन सा क्वेश्चन उठाऊं, मैं 15 क्वेश्चन सही करूं, मेरी एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए। तो गाइस यहाँ पे EQ बहुत ज्यादा मैटर करता है। IQ तो मैटर करेगा ना यार, सिंपल सी बात है, IQ तो होना चाहिए, राइट, बट IQ शुड बी बैक्ड बाय EQ। तुम्हारी लाइफ सेट है DILR में। थोड़ा सा अगर हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा अगर हम आगे चलते हैं, देखो अगर हमें जंप करना है 80 से लेके 85 तक, 80 से लेके अगर हमें 85 तक जंप करना है, यार कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर तुम्हें 2019 के बारे में बात करूं, राइट, 2019 के बारे में बात करूं, 3 मार्क्स का आपका वेरिएंस है, आपका 3 मार्क्स का डिफरेंस है, विच इज 1 क्वेश्चन। सो भाई मेरे भाई 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 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू तुम्हारा 5 परसेंटाइल का जंप, तुम्हारा 5 परसेंटाइल का जंप। व्हाट द हेल, 1 क्वेश्चन करेक्ट इज इक्वल टू 5 परसेंटाइल का जंप। What else you need? What else you need? Now there is only one thing that I want to differentiate. You like it or you hate it. Cat आपका निकल जाएगा, आप thank you बोल सकते हो बाद में. My only target is not to talk, not to have sweet talks with you, but give you guys realistic information ताकि आप लोग सुनो और समझो. 2 चीजें आज यहाँ पे बताऊंगा. स्मार्ट बच्चा, ओके, स्मार्ट बच्चा एंड लेट्स से नॉन स्मार्ट बच्चा. अब हम बाकी कोई एडजेक्टिव यूज नहीं करेंगे. स्मार्ट बच्चा, नॉन स्मार्ट बच्चा. स्मार्ट बच्चे का जो अटेम्प्ट होता है वो एक्यूरेसी के साथ होता है. जो नॉन स्मार्ट होते हैं वो बस अटेम्प्ट करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं. क्योंकि हमको बोला गया है, हमको कैट में गोली दिया है, और वो गोली क्या होता है, 16 करो हो जाएगा, 14 करो हो जाएगा. पर भाई मेरे 14 वॉट एक्यूरेसी, 15 वॉट एक्यूरेसी, 16 वॉट एक्यूरेसी. This is the only difference between somebody who can crack DILR and somebody who cannot crack DILR even after slogging his ass for 6 months, 1 year, 1.5 year, 2 years, whatsoever. These are the statistics, these are the scaled score. Your raw score will always be lesser than your scaled score. इससे easy कुछ भी नहीं हो सकता दुनिया में. And that's the reason I say it loudly again and again. Cat is doable. Cat is crackable. Cat can make fucking your career. You can get into IIMs, you can get into SPs and every shit that you can crack via Cat. You can have a beautiful life. You can have a good placement. Only and only if you use your brains and feed your brains with some realistic data and not feeding it by some shit. Okay, this is very important because ये बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है और ये बहुत ज्यादा जरूरी है. अब चलेंगे 90 परसेंटाइल पे, ठीक है. अब चलेंगे 90 परसेंटाइल पे. 90 परसेंटाइल पे स्कोर है तेरा 32. हाँ, 27 से लेके मैं 32 पे चला, 7 5 12, मतलब 5 मार्क्स बढ़ा. यहाँ पे मेरे को 2 क्वेश्चन की ज्यादा जरूरत है. यहाँ पे मेरे को 2 क्वेश्चन की ज्यादा जरूरत है. मैं 2 क्वेश्चन सही करता हूं, मैं 90 के क्लब में आ जाता हूं. 32 का मतलब कितना क्वेश्चन करना पड़ेगा सर आपको? 32 का मतलब आपको 32 के स्कोर के लिए कितना क्वेश्चन करना पड़ेगा? 11 क्वेश्चन करना पड़ेगा. एक बफर लेके चलते हैं. 12 क्वेश्चन आपने कर लिया. अब मान लो 12 में से एक क्वेश्चन गलत गया, 11 क्वेश्चन कर लिया. 11 3 33 -1 जो नेगेटिव में चला गया, बन गए 32. स्पॉट ऑन 90 परसेंटाइल. Are you guys with me? Are you guys with me? Are you able to understand what I'm trying to tell you? Right? ये आपके पास पूरा का पूरा चार्ट रखा है और सर आपको यही चीजें ध्यान में रखनी है, यही चीजें आपको काम आएगी. आप एक्यूरेसी पे ध्यान दो. आप सेट सिलेक्शन के बारे में चिंता मत करो. आप सेट थ्योरी के बारे में चिंता मत करो. अरे सर नंबर सिस्टम के ऊपर डी आया, छड्डो. अरे सर पीएमसी के ऊपर आया, छड्डो. यू ओनली हैव टू वरी अबाउट दिस थिंग्स व्हेन यू आर टारगेटिंग 95 परसेंटाइल प्लस टू गेट दोस 32 मार्क्स, टू गेट दोस 35. क्या होगा अगर तेरा पेपर एकदम गंदा आया? 2017 से तो टफ नहीं आएगा. देख भाई 28 पे है तू, मतलब 10 क्वेश्चन. अगर और इजी आ गया, चल ना 32 का 36 हो जाएगा. 32 का 36 हो जाएगा, मतलब कितना और 2 क्वेश्चन ज्यादा कर ले. 14 क्वेश्चन आउट ऑफ 32. दैट्स स्टिल डूएबल मैन. 42% of the paper that you have to do, which is a section wise. तो when you understand your LOD, benchmark करना है आपको. सर 2017 the toughest one, 2019 the easiest one. अगर इस लेवल पे आता है
इतने अटेम्प्ट, अगर इस लेवल पे आता है इतने अटेम्प्ट, इससे ज्यादा टफ अटेम्प्ट को घटाओ, इससे ज्यादा इजी अटेम्प्ट्स को बढ़ाओ, एक्यूरेसी भी बढ़ेगा, बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी डन बाय द मैक्सिमम जनता व्हेन द क्वेश्चन पेपर इज इजी विल गो अप। इससे इजी मैं नहीं आपको बता सकता। Are you guys with me? Are you guys with me? Are you getting what I'm trying to tell you guys? This is not a rocket science. It's a beautiful thing. It's a beautiful thing that you need to understand. You can actually take you can click the screenshot, right? चलो एक 95 percentile के बारे में बात करते हैं। 38 excuse me 38 का स्कोर 38 का स्कोर है आपका। 38 के स्कोर पे आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं सर? 14 क्वेश्चंस करने हैं। 14 क्वेश्चंस है ना? 14। तो क्या 32 में से थोड़ा आई चेंज द इंक बाय द वे, तो यार 32 में से हमारे 14 क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, हमारे 14 क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। इसमें 2 सेट आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन ओरिएंटेड है, रडार ग्राफ फकॉल देखा 3-4 मिनट में खत्म। एक और क्वेश्चन उठाया, आपके 8 क्वेश्चन यहाँ पे बने, 8 क्वेश्चन बने, तुम्हारे पास 6 सेट्स बने, 6 मतलब 24 क्वेश्चन है। 24 क्वेश्चन में से ऊपर 6 क्वेश्चन कर लो यार, तुम्हारी लाइफ सेट है, यू आर इन द 95 का जोन। व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड? व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड? राइट, दिस इज द मोस्ट इजी थिंग दैट पीपल कैन डू। मैं ये नहीं बोलता हूं कि अरे भाई ये बहुत ही टफ है, नो 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 नो, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम नॉट सेइंग दैट यू नो ये बहुत ही ज्यादा इजी है, नो 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 नो, मैं ये नहीं कहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये टफ होता है, और ये अच्छा खासा टफ होता है जब हम बात करते हैं 99++ के बारे में। जब हम बात करते हैं 99++ के बारे में, बिकॉज जब 99++ के बारे में बात